Hey everyone, welcome to Tutor at Academy. So my name is Chirag Vaishnav and welcome to the first video for the podcast slash interview series that we will be conducting on this channel. So this series will basically consisting of all the important things that one is seeking for interview preparation. We will be discussing with a lot of influential people, with a lot of people who have accomplished in their respective field, like what was their interview experience, how they started, and all the things about it. And I'm definitely sure that they will help you out, right? So without further ado, moving right into the topic, we are having our first guest, Raju Malik, with us. So let's start the podcast series and do watch till end, as it's going to be really beneficial for you guys. So how are you, Raju? I am fine. How are you? I'm amazing as well. So let's start with the introduction so that audience can get comfortable with you. So it will be great if you can introduce yourself. Okay. Hello everyone. I am Razu, and currently I am doing MCA from NIT Trichy. I did Bachelor in Computer Science, and I have got an offer from Takeon India Private Limited for as a associate software engineer. Amazing, amazing. So we are going to discuss a lot, but first I will request you to explain about your course. That what was the education all about? How did it all started? Means after JEE, how did you got in the college? What exactly your course teaches, and then how you got placed. So it will be great if we can understand it in a flow like a story. Okay. So I moved to Indore. There I prepare approx 12 months for NIMSET examination. After the preparation, I got NIT Trichy, and in the entrance examination, I got All India rank 67. So yeah, this was my That's journey till amazing. college. Congratulations for that. Yeah, thanks. And after that. Yeah, after that, my journey of college started. In college, I didn't study about the programming and all stuff. So from in college, I started learning programming, and initially I faced many problems. Uh, so I took help from my college mates. So in the first year, I was not really कुछ ज़्यादा मैं serious नहीं था पढ़ाई को लेके. तो मैंने लोगों से हेल्प मांगी, दोस्तों से हेल्प मांगना शुरू किया और मैंने पढ़ना चालू किया। तो पहला साल मेरा ऐसा ही निकला, कुछ ज़्यादा खास आउटपुट नहीं मिला, लेकिन सेकंड साल में मैं थोड़ा सीरियस हुआ और फिर पढ़ना चालू किया, फिर स्टार्टिंग से मैं पढ़ा। लेकिन सेकंड ईयर के लास्ट में आते आते भी मेरे को लगा कि ये ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो, आउटपुट नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने थर्ड ईयर में कोचिंग ज्वाइन किया, ये ट्यूटर्ड अकेडमी। उसके बाद ये फिर प्लेसमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई, तो फिर जाके मुझे प्लेसमेंट मिला। Exactly. So in the whole your process, you were like struggling from the coding part and Tutored Academy helped you out, या right? So how was your experience with Tutored Academy? Means first of all, I would like to know that how it all started with Tutored Academy, and how did you went on all through the process of learning coding and programming? सो बेसिकली क्या था कि मेरे को डीएसए आता था, लेकिन डीएसए में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और क्वेश्चन करने में इतना ज़्यादा, जैसे कि नई प्रॉब्लम में जैसे ही आता तो मैं फंस जाता था करने में। तो मेरे को लगा कि यार मेरे को कुछ हेल्प चाहिए, लोग मतलब पर्सनली डाउट थे मेरे पास। और Hmm. डीएसए में पढ़ चुका था, जैसे ऑनलाइन यूट्यूब से भी पढ़ चुका था, एक कोर्स भी कर चुका था, लेकिन कोर्स वो रिकॉर्डेड वीडियो थे, वहाँ हम डाउट्स वगैरह नहीं पूछ सकते थे। तो मैंने फिर एक मेरे सीनियर है उन भैया को मैंने अप्रोच किया, उनको बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो मेरे को कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ कि जिससे कि मैं अपने पर्सनल डाउट वगैरह पूछ सकूँ। तो उन्होंने मेरे को ट्यूटोर के बारे में बताया, तो फिर मैंने वो एक कोर्स ज्वाइन किया। वहाँ एक निशांत सर मेंटर थे वो मेरे, उन्होंने मेरे को पढ़ाया। तो यस, ऐसा हुआ। Exactly. Means this is really amazing that what you thought and you were able to achieve that with the help of Tutored Academy, right? So one more question about it, that Tutored Academy only have courses for means experienced, right? Yeah. Experienced courses, experienced person or professionals we can say, and they're not having that courses for freshers. That how you accommodated with that? सो बेसिकली क्या है कि मेरे को नहीं लगता कि फ्रेशर को ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। मेरे को दिक्कत इसलिए लगी कि मैं डीएसए में कोई नया नहीं था, मैं ऑलरेडी कर चुका था हाँ. डीएसए। बस मेरे को थोड़ा सा अंदर की चीज़ें जाननी थी। तो और जो जो वहाँ थे एक्सपीरियंस थे, उन्होंने भी कर रखा था और मैंने भी कर रखा है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। फ़र्क बस था उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज थी। तो फिर मैंने उनके साथ करना चालू किया और मेरे पास टाइम बहुत था, टाइम की कोई कमी नहीं थी।
तो जैसे कि उन सैटरडे संडे को वहाँ क्लास होती थी, तो बाकी टाइम पे मैं क्वेश्चंस करता था और वो वहाँ से क्वेश्चन मिलते थे हमको करने के लिए, वो करता था। और जो भी मुझे डाउट होते थे सैटरडे संडे को पूछ लिया करता था। और बाकी कोई ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं आने लगी, और क्लासेस वगैरह ऑनलाइन थी तो वहाँ से मैं टाइम निकाल लेता था, क्योंकि सारी क्लासेस में हम टाइम तो देते नहीं हैं, कुछ क्लासेस को हम ज्वाइन करके भी छोड़ देते हैं, बाकी टाइम में मैं अपने ये डी से पढ़ता रहता था। हम्म। मेरा अगला सवाल एक्चुअली यही था कि आप टाइम कैसे मैनेज करते थे, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम, ठीक है आपने बोला कि केवल वीकडेज वीकेंड्स पे ही अपनी ट्यूटर्ड एकेडमी क्लासेस होती थी और बच्चे वैसे आप कर लेते थे। तो पहली बात तो आप ट्यूटर्ड एकेडमी के वीकेंड्स पे कैसे कोर्सेज लेते थे, कितने कोर्स आपने ले रखे थे? एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप टाइम मैनेज कैसे करते थे, बिकॉज आपको डीएसए करते के टाइम भी, बिकॉज एज यू आर कॉलेज स्टूडेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, हम्म। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। आपकी क्लासेस होती है, आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, आपके क्विजेज होते हैं, आपके मतलब अलग अलग एग्जाम्स आते रहते हैं, बिकॉज इन द केस ऑफ एमसीए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, राइट? हम्म। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? एंड ऑल्सो यू हैव टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एज वेल। हाँ, तो ठीक है, तो कॉलेज में जो असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं तो हम जानते हैं कि असाइनमेंट खुद से तो कोई बनाता नहीं है, दोस्तों वगैरह की हेल्प ले लेते हैं। सो मैं क्या करता, ये बात आपने एकदम सही मैं बोली। ही ऐसा ही करता था कि इंतजार करता था लास्ट टाइम का, हाँ कौन कर रहा है, किससे हो रहा है, जो कर देता था उसका ही मैं छाप देता, थोड़ा बहुत उसमें अपने मिला देता था और हो जाता था मेरा काम। बस फर्क इतना होता है कि जो कुछ अच्छा बंदा कर लेता है वो तुम्हारा 10 पॉइंटर बना लेगा, मेरा 8 बना लेगा, मैं 8 में खुश हूँ क्योंकि 8 में भी कंपनी में बैठ जाऊँ। Exactly. You have to think smart, but this will not be advice to all the viewers, right? या You have to work hard, right? So the next question, okay, one more question that I wanted to ask is कि आपने कितने courses ले रखे थे? सो बेसिकली क्या था, कोर्स तो मैंने 2 कोर्स कर जॉइन किए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम था, क्योंकि क्लासेस वहाँ सैटरडे संडे को होती थी, तो बाकी टाइम मुझे टाइम बच जाता था कि मैं करूँ क्या। तो एक उनका एक Yes. और कोर्स था जो कि उसमें रिकॉर्डेड वीडियो थे, वो लाइव थे, लेकिन वो रिकॉर्डेड करने के बाद से लाइव होने के बाद वहाँ अपलोड कर दी जाती है। तो मैं वहाँ पीछे से वेबसाइट से वहाँ से पढ़ता गया, जैसे मेरे पास टाइम बचता था मैं उस कोर्स को कर लेता था। Exactly, right. So the next question that I wanted to ask is, throughout your journey, what was your final aim? And you have achieved that aim because you are here placed right now, या right? So how was your journey like that? Because a lot of students are there struggling with the mindset that okay, in the first or second year, they were not that like okay placement लेना है, इतनी उन्होंने टेंशन नहीं ली थी. In the starting of third year, they got started okay बहुत टेंशन हो रही है, and at the end they kind of being hectic, they miss the opportunity of placements. So anything you want to share with them and your story, that how you came out of it and how it all started with your specific placement story? देखो, एक गलती मुझसे हुई थी कि थोड़ा मुझे जल्दी सीरियस होना चाहिए था, तो जाके काफ़ी अच्छा कर लेता, लेकिन हाँ बोलते ना देर आए दुरुस्त आए, तो मैंने जैसे ही सीरियस हुआ तो मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को बहुत सारी दिक्कत आने लगी। तो मैंने जैसे कि लोग क्या करते हैं कि लोगों से पूछने में झिझकते हैं कि हेल्प नहीं मांगते हैं दोस्तों वगैरह से, छोटी छोटी प्रॉब्लम। तो मैं मेरी एक बात है कि कितनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो तो मैं पूछ लेता हूँ दोस्तों से, भले ही 2+2 4 होते हैं, ये नहीं आता तो ये भी पूछ लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे ही मेरे साथ प्रोग्रामिंग में करता था, चाहे भले ही कितना ही छोटा से छोटा डाउट होता हो मैं दोस्तों से पूछ लेता था। पहले गूगल करता था, अगर गूगल में नहीं मिल रहा है तो मैं दोस्तों से पूछ लेता था। तो वहाँ से मेरा ये डीएसए का जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ कि मैं क्वेश्चन करता जा रहा था, लेकिन एक टाइम पे ऐसा रहा था, कुछ टाइम करने के बाद मुझसे जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना वो ही नहीं हो पा रहे थे। तो फिर Hmm. मैंने सोचा कि हाँ गलती मुझसे क्या हो रही है। तो मैं गलती में ये कर रहा था कि मैं अंदर की चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था, कि जैसे ही भले ही थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस आ जाते थे तो मैं अटक जाता था। तो Hmm. मैंने फिर क्या किया, मैंने देखा कि हाँ भाई अंदर की चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे कि डीएसए में रिकर्सन वाला पार्ट होता है उसमें विजुअलाइज करना पड़ता है। मैंने कुछ चीज़ें मतलब एक तरह की याद ही कर ली थी, लेकिन वो नहीं हाँ. करना चाहिए, हमको हमको बेसिक समझना चाहिए। तो मैं बस यही सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले बेसिक्स करो। कंपनी अगर क्वेश्चन तुमसे 3 पूछ रही है तो 1-2 क्वेश्चन तो बेसिक से पूछ लेगी तुमसे, एक आध क्वेश्चन एज ए वार्म अप, तो तब आगे बढ़ोगे। तो यही मैंने गलती की, बेसिक्स पे इनिशियली ज़्यादा ध्यान दिया और डायरेक्ट जंप हो जाता था मैं मीडियम वगैरह प्रॉब्लम पर। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। एग्जैक्टली, मतलब बेसिक्स पे हमेशा हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हाँ। राइट? एंड रिगार्डिंग दैट बेसिक्स ओनली, हाउ यू लाइक स्टडी थ्रू आउट के मतलब कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन से टॉपिक और कैसे आपके हिसाब से अगर कोई फ्रेशर है तो उसे शुरू करना चाहिए?
तो जैसे कि पहले बेसिक्स करो। हाँ, बेसिक करने के बाद जैसे कुछ, जैसे कि अब आप जैसे आपने हमने एरे कर लिया, तो जैसे कोई भी साइड पे जा सकते हो, गिग्स हुआ, लीड कोड हुआ, वहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं एरे के क्वेश्चन। तो सबसे पहले इजी का फिल्टर लगा दो वहाँ। इजी के बाद जैसे क्वेश्चन तुम कर लो 15-20 क्वेश्चन, जैसे ही तुम कंफर्टेबल हो जाओ इजी वाले पार्ट में, फिर आप मीडियम पे पूछ सकते हो, फिर मीडियम वाला फिल्टर लगा दो। उसके बाद जैसे ही मीडियम के 10-15-20 कर लो, उसके बाद हार्ड वाला लगा दो। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसी के क्वेश्चन कर लेते हैं 50-50, 60-60। अगर आपके पास टाइम है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है तो 15-20-30-40, जैसे ही आपका पूरा पोर्शन आ जाए, अगर तुम्हारे पास फिर से टाइम बचता है तो फिर से एक बार राउंड लगा दो। और मेन चीज़ रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि हम क्वेश्चन करते जाते हैं लेकिन पीछे से करते नहीं जाते हैं। तो जैसे कि मान के चलो आपने क्वेश्चन कर लिए, और ऐसे 8-10 दिन बाद एक बार देख लो ऊपर से कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने ऐसे किया था। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने नया किया, इसमें कुछ अलग सा ही कंसेप्ट जो है, तो उसको नोट बनाते चलो साइड में। एग्जैक्टली ये जो आपने बात बोली नोट्स की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने ये चीज़ अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हम्म। मैंने, अगर आप अनुज भैया को जानते हैं हाँ हाँ, तो जानता हूँ। मैंने अनुज भैया के साथ भी ये चीज़ डिस्कस कर रखी है, मैंने निशान चहर उनके साथ भी ये चीज़ डिस्कस कर रखी है। एंड द थिंग इज़ दैट कि आप कुछ भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ, होता ही जा रहा है, राइट। द मेन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि जो कर रहे हो उसको याद भी रखो, अपनी मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फेवरेट स्टार मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि द ease to or eagerness to remember your logic is very important, right? And that's one of the important thing that we have learned from you today. हाँ, और सबसे So ज़्यादा दुख होता है तो जैसे कि हम जो क्वेश्चन कर रहा होता है और इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो नहीं होता है हमसे। वो इसी वजह से नहीं हाँ, होता, हम रिवीजन वगैरह नहीं करते अच्छे से। एग्जैक्टली और मुझे अगला क्वेश्चन इसी रिलेटेड आपसे पूछना है कि जैसे आज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ तो वी नो यू हैव अचीव समथिंग, हाँ राइट। बट बहुत सारे लोगों को केवल अचीवमेंट्स दिखती है, फेलियर्स नहीं दिखती। हाँ। तो अगला क्वेश्चन है मेरा अबाउट योर फेलियर्स, दैट रिगार्डिंग योर इंटरव्यूज, रिगार्डिंग योर प्लेसमेंट्स, दैट कितनी, कौन से अटेम्प्ट में आपको ये जॉब मिली, राइट। और उससे पहले आपने कितने फेलियर्स देखे और उससे क्या क्या सीखा, तो मैं इफ़ यू कैन शेयर हाँ, दैट। तो मैं शुरू से बताता हूँ, मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं। सबसे मेरा फेलियर्स हुआ था, मेरा 12th के बाद से ही हो गया था जेई वाला फेलियर। तो पहले मेरे अटेम्प्ट में करीब 3.5 या 4 लाख के करीब रैंक आई थी जेई मेन में, उससे कुछ मिलने वाला नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो एक और ट्राई देते हैं। थोड़ा उस टाइम में फुल सीरियस नहीं हुआ था, हाँ, लेकिन सीरियस हो चुका था। तो एक थोड़े से गलत संगति में पड़ गया था, रिलेशनशिप वगैरह में आ गया था। तो फिर वहाँ से मेरा सीन बदला, लेकिन उस टाइम पे फिर मैं लास्ट के 3-4 महीने थोड़ा सीरियस हुआ था, लेकिन फिर मैंने उसमें मैंने अपने आप को 1 लाख के अंदर डाल लिया था। करीब 98 के करीब मेरी रैंक थी। और उस टाइम में मेरे टाइम पर 60% ये होता था जेई का स्कोर, और 40% बोर्ड का इंक्लूड होता था ऑल इंडिया रैंक में। तो मेरा बोर्ड का स्कोर खास ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो इसलिए मेरी ऑल इंडिया रैंक भी अच्छी नहीं आई, और उसमें मेंस में भी ज़्यादा स्कोर नहीं था। तो उससे मेरे को कोई कॉलेज अच्छा मिलने वाला नहीं था उस रैंक में। हाँ, कॉलेज मिल सकता था, लेकिन अच्छी ब्रांच और अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला था। तो ठीक। फिर ऐसे ही मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था, तो ऐसे ही मैंने ये डाल दिया ये वाला बीएससी वगैरह। उसके बाद फिर मैं सीरियस हो गया था, हाँ भाई मैंने इतनी फेलियर देख लिया, इतना पैसा खर्च कर लिया घर वालों का, अब तो सीरियस हो जाना चाहिए। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने ये एमसी मास्टर के लिए एंट्रेंस के में आ गया। वहाँ मैंने सीरियस हुआ अच्छे से, और प्रिपरेशन मैंने कर ली, और आ गया उसमें नंबर मेरा। उसके बाद ये कंपनी वाला ये फेलियर स्टार्ट होता है। तो मैं करीब बैठा हूँगा, करीब 10 से 15 कंपनी में बैठ लिया हूँगा। उसमें से फर्स्ट राउंड में निकाल चुका था 7-8 कंपनियों का। मतलब फर्स्ट राउंड जो हाँ। ऑनलाइन टेस्ट होता है, उनमें से वो राउंड निकाल चुका था। उसमें जो इंटरव्यू में, और करीब 3-4 कंपनियों में फाइनल राउंड तक पहुंच चुका था, जिनमें मैं बाहर एचआर राउंड से बाहर आया था। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं डायरेक्ट इस कंपनी में हो गया था, इससे पहले मतलब इतना ऐसा हो गया था कि एक बार तो कि यार कोई भी कंपनी मिल जाए मैं ले लूंगा। अब मैं इतना थक चुका था मैं अपने उससे, कि बार बार हाँ। कंपनी में बैठना, बाहर से इंटरव्यू में आना, और फिर से फेलियर होके आना, फिर से घर वालों को बोलना कि यार नहीं हुआ फिर से। हाँ, मतलब ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा चुभती है। हम्म। तो फिर जाके लास्ट में जब हुआ कि हाँ अब हो गया। और हुआ भी बहुत बढ़िया जगह, तो हाँ। इट्स रियली एक इंस्पिरेशनल सी स्टोरी है आपकी, राइट। एंड आई एम श्योर दैट बहुत सारी ऑडियंस इससे इंस्पिरेशन लेगी, इससे मोटिवेशन लेगी, एंड दे विल ऑल्सो स्टेप अप एंड डू समथिंग अमेजिंग लाइक यू, राइट। सो what was your interview experience like? Because we have discussed that, we have discussed about your introduction, we have discussed that how your story all started, about your course,
then we have discussed that how Tutor Academy helped you. After that, we have discussed about your preparation journey, about your failures and all the things. Now let's jump to your interview experience, that how was it, how the success story began. सो बेसिकली पहला राउंड हुआ था, उसमें हमारा ये ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। उसमें हमारे पास दो कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, एक इजी था और एक मीडियम था, और उसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड और ये कोर सब्जेक्ट जो भी हैं। तो वो हो गया था मेरा पहला राउंड में, मेरा नाम आ गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे हमारा इंटरव्यू शेड्यूल था, जिसमें हमारे 3 राउंड थे। दो टेक्निकल राउंड थे, एक एचआर राउंड था। जो टेक्निकल राउंड थे प्योर डीएसए बेस्ड थे। तो पहला राउंड में ये उन्होंने डीएसए के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट, मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने, पहले इंटरव्यू ने उसने अपने बारे में बताया, और उसके बाद फिर डायरेक्टली जब हम डीएसए पर आ गए तो पहला क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चन पूछा था मेरा लिंक लिस्ट का, कि आपको नोड का एड्रेस, वो हेड नोड नहीं दे रखा है, आपको एक नोड दे रखा है, उसको डिलीट करना है, तो वो आसानी से हो गया था। दूसरा क्वेश्चन मेरे को पूछा था केडन एल्गोरिथम रिलेटेड, हाँ वो भी मेरे से हो गया था। और तीसरा ये वैलिड पैरेंथेसिस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, वो भी हो गया। तो पहला राउंड मेरे लिए आसान पड़ा था और वो आसानी से निकल गया था। फिर मेरे को उसके बाद फिर कॉल आता है उधर से कि तुम्हारा फर्स्ट राउंड हो चुका है और तुम्हारा अगले राउंड के लिए तुम आ रहे हो तुम अगले राउंड में। तो उन्होंने मेरे को टाइम बताया, उस टाइम पे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। फिर सेकंड राउंड में पूरा डीएसए बेस्ड था, उसमें भी मेरे से उसमें केवल दो डीएसए क्वेश्चन पूछे थे। एक तो बेसिक क्वेश्चन था कि टाइम को स्ट्रिंग का टाइम दे रखा था, वो कन्वर्ट करना था अकॉर्डिंग टू इंडियन आर्मी सिस्टम, तो वो आसान पड़ा था, वो कर दिया था। और दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे दिक्कत आई थी, लेकिन वो भी हो गया था, मैंने इंटरव्यूअर से हिंट मांगी। दूसरा क्वेश्चन ऐसा था कि आपको एरे का पेयर सम, टोटल पेयर सम दे रखा है और आपको ओरिजिनल एयर निकालना है। तो मैंने पहले अब खुद से ट्राई किया, लेकिन थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था या फिर अप्रोच नहीं कर पा रहा था। तो मैंने इंटरव्यू को पूछा कि सर मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, तुम अगर तुम कुछ हिंट दे सकते हो तो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था वो। उन्होंने मेरे को थोड़ा छोटा सा हिंट दिया और मैंने पकड़ दिया उसको और मैंने प्रोसीड कर दिया और वो मुझसे हो गया। उसके बाद 10-5 मिनट बचे थे उसमें, तो उन्होंने शायद मुझसे ये कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछे और उसके बाद वो सेकंड राउंड हो गया। सेकंड राउंड के बाद फिर मेरे को फिर वापस से कॉल आता है कि तुम सेकंड राउंड आपने क्लियर कर लिया, आप एचआर राउंड में आ रहे हो, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया। एचआर काफ़ी अच्छा हुआ मेरा, और जो मेरी मैम थी उन्होंने जिन्होंने मेरा एचआर लिया था, उन्होंने भी अपने बारे में बताया, मेरे बारे में पूछा, जो बेसिक एचआर्स के क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन पूछे थे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था। और मेरा रिज्यूमे से रिलेटेड ही उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, तो तुम्हारी जर्नी क्या रही पूरी ऊपर से नीचे, और जो मेरे प्रोजेक्ट जो भी मैंने किए हैं, बाकी बस यही था मेरा। एग्जैक्टली, एंड लाइक इट वाज लाइक रियली वंडरफुल ऑल्सो। एक जो चीज़ आपने बोली मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो रिक्रूटर होता है या जो भी इंटरव्यूअर होता है, ही इज़ नॉट देयर टू रिजेक्ट यू, या ही इज़ देयर टू सेलेक्ट यू। या अगर वो आपको रिजेक्ट करेगा तो उसको एक और जने का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, हाँ एंड दैट विल बी इवन मोर डिफिकल्ट फॉर हिम और हर, राइट। तो इस माइंडसेट के साथ जाओ कि वो सेलेक्ट करने ही आया है, और हाँ इस माइंडसेट के जाओ कि अपने पास खोने को कुछ नहीं है। अगर मुझे नहीं आता तो मैं खो ही रहा हूँ, पर खोने को कुछ है नहीं, मैं उससे पूछ सकता हूँ एक हेल्प के लिए। अगर वो हेल्प कर देगा और अगर मैं आंसर तक पहुँच गया तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। वो बस एंड चाहता है कि तुम ट्राई कर रहे हो ना, तुम मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो तुम्हारी टेक्निक है वो देखना चाहता है कि हाँ तुम्हारे सामने कोई कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम उसको फेस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली, वो आपकी देखना चाह रहा है कि आप कितने उत्सुक हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, राइट। एंड इफ़ यू आर, you will for sure perform well. So I will advise all the viewers that they can perform well, right? तो इन सब इंटरव्यू जर्नी में what was the role of Tutor Academy? How they helped you out? तो ट्विटर अकेडमी में ये निशांत सर थे, उन्होंने बताया कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो उन्होंने बताया कि जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिख जाए तो डायरेक्ट उसके सॉल्यूशन में मत कूदो, पहले क्वेश्चन को समझो बारीकी से कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसके बाद इंटरव्यूअर से सारे टेस्ट केसेस से जो भी पॉसिबल है उनके बारे में पूछ लो। फिर उसके बाद पूछो, अगर नहीं आ रहा है तो पूछो इंटरव्यूअर से ये टेस्ट केसेस सर, इसका आउटपुट कैसे आया, ऑल दैट। तो उसके बाद जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ आए, फिर आप जैसे कि भले ही आप जैसे कि आप कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन कर चुके होते हैं जो क्वेश्चन पूछा होता है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच पर पहुंच जाते हैं और इंटरव्यू समझ जाता है कि इसने रटा हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव पड़ता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, उसको पहले हमको ब्रूट फोर्स अप्रोच बताना है कि सर हाँ सर मेरे को ये ब्रूट फोर्स समझ में आ रहा है, क्या मैं आपको ये बता सकता हूँ, तो 2-3 मिनट में आप वो बता दीजिए। उसके बाद इंटरव्यूअर खुद पूछेगा कि इसको ऑप्टिमाइज करो। उसके बाद ऑप्टिमाइज करना है प्रॉब्लम को, और दैट अगर फिर से बोलता है और ऑप्टिमाइज करो, फिर सोचना है। तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। और यही पूरा मतलब एक पूरा माइंडसेट बना दिया था इन्होंने कि हाँ भाई तुम, और इन्होंने ये भी हमको एक विश्वास दिला दिया था कि कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, वो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, बस बस तुम मेहनत करते चलो। हाँ एग्जैक्टली, ये कहीं एग्जैक्टली,
एंड यू सेड एब्सोल्युटली करेक्ट थिंग्स, राइट. सो आई होप ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा बच्चों के लिए. मेरे लिए फॉर श्योर आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, राइट. सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स. So it was an amazing session. I am glad that I did this and I was a part of this. Thank you, Tutor Academy, for providing me such an absolute platform where I can interact with such intellects. So thank you, Raju, and I wish you all the luck for all your future endeavors.